Assalamu alaikum. This is a new lecture, and we are done with the consumer theory, and now we are starting with the producer theory. And the producer theory is all about producer. So, what do we have in producer theory? This is uh, the lecture number 7.2, as you can see over here. Yeah, or chapter 6 we'll doing. So, producer, what producer is? They are profit maximizers. ये profit symbol है. Profit maximize. How do we define profit? It is defined as the difference between total revenue and total cost. So, what is total revenue? Total revenue is defined by the money which is earned by selling the product in the market. How many units you are selling? You are selling Q units. At what price you are selling? At price. So P times Q is total revenue. What is total cost? Total cost is the cost of producing output. On what it depends? It depends on the total amount produced. So we say total cost is a function of output. So I just simply write the expression. Let me insert back these values over here. So I'll get like P times Q minus total cost. So if you really want to know about the producer theory and the profit maximization, you need to learn these three things. One is pricing decision, second is production theory, Q is production. So this is production theory, and the third thing which is it's a cost theory. Okay, so if you just cover these three topics, so actually you're done with the producer theory. Now how pricing decisions takes place is depend on the market structure. So if you really want to learn that how the prices decisions are taken place, so you need to know about the market structure. How many market structure are there in we talk about? There are four main categories of the market structure जो कि हम पढ़ेंगे. एक का नाम है perfect competition. It is also called pure competition. थोड़ा सा फर्क है, चीज़ एक ही है. और दूसरा जो होता है वो होता है monopoly. ओके, तीसरी चीज़ जो होती है monopolistic competition. एंड चौथी चीज़ होती है उसका नाम है नंबर 4 इज द oligopoly. ठीक है, तो प्रोड्यूसर थियरी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट थियरी. प्रोडक्शन फंक्शन नहीं, इट्स बेटर से प्रोडक्शन थियरी, बिकॉज प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ एक प्रोडक्शन का फंक्शन है, लेकिन प्रोडक्शन थियरी कंटेन्स मैनी थिंग्स. और फिर मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर में वो जो चार स्ट्रक्चर मैंने बताए. सो दैट इज ऑल फ्रॉम द प्रोड्यूसर थियरी. ठीक है जी, जो कि हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे. सो in this connection, the first thing we will be doing today is the chapter number 6, and it is production theory. The production theory जो है इसके handouts हैं कुछ जो कि और इसकी slides हैं, slides of chapter number 6. ठीक है, ये दोनों चीज़ें I have uploaded on week 7 on Moodle. ठीक है जी, वो हमारी गाइडलाइन होगी. और what we have to cover from production theory, and so let's see what we have to cover. If I talk about total production, what is production? Production is also called output. Okay, how does it takes place? It takes place by combining inputs. Inputs क्या होती हैं? There are four categories which are called inputs. They are combined together to convert the input into output, and they are land, represented by this is land, labor, capital, and fourth is entrepreneur. Entrepreneur is basically a person who is managing all the three to convert the input into output. Because of the dimensions capacity, we have two dimension. हम कहते हैं कि लैंड फिक्स रहती है और एंटरप्रेन्योर को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं. सो हमारा फोकस जो है वो लेबर और कैपिटल पे होता है. लेबर इज प्रेजेंटेड बाय एल एंड कैपिटल इज प्रेजेंटेड बाय कैपिटल के. ये इसके सिंबल्स हैं. तो अगर मैं प्रोडक्शन फंक्शन लिखूँ तो एक्चुअल प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो होता है क्यू इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है जी,
लेकिन क्योंकि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं और इसको हम लैंड को भी, ये लैंड है, लैंड को भी इग्नोर करें तो बेसिकली दो इनपुट्स रह जाएंगे। और Q इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये क्या चीज़ है? ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन function is defined as relationship or function between inputs and output। आउटपुट जो है वो Q है और लेबर एंड कैपिटल जो है वो दो इनपुट्स है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है इन चीज़ों को डिफाइन करता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन थ्योरी क्या है, अब हमें करना क्या होगा इसके अंदर? तो लेट्स रिव्यू द चैप्टर समहाउ सो दैट वी कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। सो लेट मी ओपन द बुक फॉर यू एंड सी कि हम उस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। So I'm opening. Here we go with the production function, right? And if you see from chapter outline, if you can see the chapter outline, and you can see थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ मैं इसे 100%, yes sir, 75%, yeah that's better. So look at this, ये आपका है प्रोडक्शन का chapter out form and their production decision, production on one variable input, production on two variable input and returns to scales। ये चार बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं और इसकी जो डिटेल्स हैं प्रोडक्शन विद ए वन इनपुट, इसके साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और ये सारे हैं। और इसके अलावा डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ग्राफ्स हैं इसके, ये देखें, ये व्हाट टू फॉर्म टू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन फंक्शन, Q इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। कैन यू सी दैट? ये है आपके पास, ये देख लो। If you can see that, just a minute, let me have this। किस तरह से लेना है? मुझे लेना है select to, okay? If you can see that, ये आपके पास है, ये प्रोडक्शन फंक्शन I just discussed, ये प्रोडक्शन फंक्शन। मूविंग ऑन, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट, शॉर्ट रन की ये तीन कॉन्सेप्ट्स। फिर प्रोडक्शन विद वन वेरिएबल इनपुट लेबर, ये कॉन्सेप्ट। फिर एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट्स, ये क्या होती हैं। मूविंग ऑन, फिर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये मैं साथ साथ बनाती रहूँगी। और फिर उसके बाद स्लोप ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कर्व्स में कौन, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। एंड देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और फिर ये कि ये हम बॉक्सेस नहीं पढ़ते। इसके बाद लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ अ वेरी, इसको भी छोड़ दें। प्रोडक्शन फिर आ जाता है प्रोडक्शन विद टू वेरिएबल्स इनपुट, और फिर वहाँ पे इस वाले ग्राफ, ये वाला आइसोकॉन्ट वाला कॉन्सेप्ट। और फिर इनपुट फ्लेक्सिबिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, सब्स्टिट्यूशन अमंग द इनपुट्स, ये सारा कुछ। एंड फिर लॉ ऑफ टेक्निकल मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये वाला ग्राफ, ये वाला दिस इज इम्पॉर्टेंट। और फिर टू स्पेशल केसेस प्रोडक्शन फंक्शन के, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, जो कि ऑलरेडी भी रिटर्न्स टू स्केल, जो कि लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर। एंड देन विल डू सम क्वेश्चंस। तो ये हो गया चैप्टर रिव्यू। अब मैं I'll open the slides with you and you can see that what slides I have actually posted for you. So starting with this production function, and then technology of production with one input, production with two inputs, and returns to scale. So these are the four main points we'll cover. So let me go back to my slides, my working place, and this is what I have to do. So this is production function. We will discuss it in 4 dimensions. Production function, production theory, actually production function एक चीज़ है, production theory contains many things. production function इसके अंदर बात करेंगे with
with A होगा with one variable input, we call it short run production function. ठीक है, और फिर इसके बाद होगा सेकेंड बी होगा, और इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ग्राफ्स ऑफ total product, average product and marginal product, concept of diminishing marginal productivity, ये कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है जी, और दैट्स इट. उसके बाद हम करेंगे बी पार्ट विद टू वेरिएबल इनपुट्स. ठीक है, हाँ, इसके लिए एक और है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये भी होगा विद टू वेरिएबल इनपुट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे आइसोक्वांट्स की, आइसोक्वांट्स. ओके, और फिर इसके अंदर फर्दर जो होगा टू स्पेशल केसेस, एक है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन केस और एक है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस. ठीक है, तो ये आपका पूरा मैंने चैप्टर ओवरव्यू कर दिया है, जो कि आप चीज़ें इसमें कवर कर रहे हो. तो मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद वन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो ये मेरा जो लेक्चर होगा इट विल बी जस्ट बेस्ड ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. हाउ डू वी डिफाइन शॉर्ट रन, व्हाट इज शॉर्ट रन? प्रोडक्शन फंक्शन तो हमने वी आर डन विद, लाइक वी नो दैट प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप between output and input. So what is different, what difference it makes when we talk about the short run? So short run, how you define short run? There are two type of time periods, short run versus long run. So what's the difference between the two? Short run is the time period in which we cannot vary everything. So there are certain things which are constant. Since it's a concept of production function, so production function is the relationship of input and output. तो शॉर्ट रन के अंदर क्या फिक्स होगा? देयर आर सर्टेन इनपुट्स विच आर फिक्स्ड एंड वी कॉल इट शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन. एंड यही चीज अगर फ्लेक्सिबल कर दें तो हमारा लॉन्ग रन आ जाएगा. नहीं, एवरीथिंग ऑल इज वेरिएबल. तो ये तो हम बाद में करेंगे. अभी हमारा जो है कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, तो let's start with the short run production function. तो ये हमें पता चल गया कि short run is a time period in which not everything is variable. So since we are talking about the production function, and production function is defined as the link between input and output, so I will just write in term of an equation and look at this. There are three things involved, Q है, L है और K है. So what do you think that what could have been fixed in the long run, in the short run, out of these three? Output depends on LK. Whenever there is a change in LK, output will change. इसका मतलब है ये constant नहीं हो सकती. लेबर क्या चीज़ होती है? लेबर ये होती है कि if you want to produce more, you buy more labor and you always have the flexibility and availability of labor. तो ये फिक्स नहीं हो सकती. The only thing which is important and it's difficult to increase or decrease instantaneously is capital, because change in capital takes time. If suppose capital is defined as a machinery, then import of the machinery or build of the machinery takes time. Similarly, if capital is defined as a building, so there is a time period involved in construction that new building. So capital is something which is not instantly changeable, so capital remains fixed, and the time period in which capital is fixed is called short run. So if I'm defining the production function for the short run, so that simply means that I will have to fix capital, because capital cannot vary in the short run. So if my short run production function is nothing, it's just the relationship between output and inputs in which capital is fixed. Okay, not everything is variable. So what is this? तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या दो वेरिएबल्स हैं, इसमें एक q वेरिएबल है और l वेरिएबल है. Now what is a link? The link is that as we keep on increasing labor, the production will increase.
right? But the question arises that is it possible to increase production indefinitely as we keep on increasing labor? This is a really important concept we need to understand. क्या हम लेबर को हमेशा बढ़ाते जाएंगे और प्रोडक्शन हमेशा बढ़ती जाएगी? In order to understand this concept, I will get some example from the practical life. अगर हम assume करते हैं कि let's say एक रेस्टोरेंट है, एक क्लासरूम है, let's say जिस क्लास के अंदर हम लेक्चर लेते हैं वो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है जी। अब उस रेस्टोरेंट के अंदर एक सर्टेन स्पेस है और वहां पर आई एम द ओनर एंड आई एम द प्रोड्यूसर एंड आई एम द वर्कर एंड आई एम एवरीथिंग। सपोज वन पर्सन जिसने वो रेंट किया और उसके बाद उसको लेकर उसने उसमें रेस्टोरेंट बनाया जिसमें वो पिज्जा नहीं बर्गर सर्व करता है, ठीक है जी। अब जो एक सर्टेन क्लास रूम है, सपोज उसका इतना साइज है और उसके अंदर दैट पर्सन सिंस ही इज ओनली वन, ये दरवाजा है, यहाँ से लोग एंटर होते हैं, तो उसने यहाँ पे 4 टेबल रखी हुई हैं और उसके ऊपर वो पिज़्ज़ा या बर्गर जो भी है वो सर्व करता है। यहाँ पे इसका काउंटर बना हुआ है एंड जो भी आता है वो उससे ऑर्डर लेता है, वो यहाँ पर बैठते हैं, उनको सीटअप करता है, उनको बर्तन लगाता है, फूड प्रिपेयर करता है, ऑर्डर कलेक्ट करता है, सर्व करता है, कलेक्ट करता है। सो ही इज डूइंग एवरी ऑल 5-6 टास्क जितने भी इसके अंदर है। द ओनली वन पर्सन हु इज डूइंग ऑल ऑफ इट and he is managing this way and is able to produce let's say 10। ओके तो वी हैव अ रेस्टोरेंट। एक क्लासरूम को आप रेस्टोरेंट समझ लो, उसमें आप 4 टेबल लगा लो और सोचो कि जितने भी टास्क हैं वो एक ही पर्सन कर रहा है, तो बर्गर बना रहा है तो कितने बर्गर्स बनेंगे? तो 1 पर्सन वर्किंग लेबर जो है वो हमारे पास है, लेबर हमारे पास है जी 1, और आउटपुट जो आ रही है वो हमारे पास सपोज आ रही है वो दिन के 10 बर्गर बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज कर लें कि कस्टमर बढ़ जाते हैं और उसके बाद उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे टास्क खुद करे, तो वो क्या करेंगे, वो एक लेबर को और हायर कर लेंगे। सपोज करो 2 लेबर है, सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी बर्गर्स 2 लेबर विल मेक? one person is making 10 burgers a day performing all the tasks, and how many burgers will be made by 2 persons? So if you think it's 20, so answer is wrong. क्यों? इसलिए कि जब 2 लोग होंगे तो दे वुड नॉट डू के इस तरह नहीं होगा कि लेट्स से टोटल 4 टास्क हैं जो किसको करने हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा कि वो चारों टास्क जो है वो पहला भी कर रहा है और फिर दूसरा भी कर रहा है। वो ऐसे करेंगे कि वो 2-2 टास्क जो है वो डिवाइड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे कि दोनों जब 2-2 टास्क डिवाइड करके काम करेंगे तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 2 लोग once they are working for such same time they will not be end up having 20 burger but they may end up having 30 burger. So the point is कि जब आप लेबर को बढ़ाते हो तो जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन होती है, जैसे अगर आपने लेबर को डबल किया तो प्रोडक्शन डबल नहीं होगी, डबल से ज्यादा होगी। 3 टाइम्स किया तो मतलब ये फिर 3 टाइम्स नहीं होगी बल्कि लेट्स से 40 या 50 इस तरह से, यानी कि इससे भी ज्यादा होगी। तो इसे हम कहते हैं कि लेबर के इंक्रीज करने से प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, लेकिन एवरी टाइम जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो पहले से ज्यादा आ रहा है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 20 है, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे 55 कर लूँ तो इन दोनों का डिफरेंस है 25, इसी तरीके से सो ऑन। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आई एम डूइंग कि मैं आई एम इंक्रीजिंग लेबर and I think that production is increasing every time the increment which is taking place in production is more than before। तो क्या मैं ये assume कर सकती हूँ कि it will go forever? नहीं। अभी आप दोबारा सोचें कि सपोज करें जो आपका कमरा है वो अगर रेस्टोरेंट है उसके अंदर 5 बंदे मैक्सिमम काम कर रहे हैं एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विच इज मैक्सिमम पॉसिबल, तो क्या होगा कि अगर 5 बंदों की कैपेसिटी है तो 6 बंदे लगाने से लेबर के तौर पे काम बेहतर नहीं होगा बल्कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट आएंगे, कंजेशन प्रॉब्लम आएगा, मैनेजमेंट प्रॉब्लम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 तक तो शायद हमारी प्रोडक्शन उसी तरह इंक्रीमेंटल हो, लेकिन 6 पे प्रोडक्शन बढ़ेगी लेकिन उतने शिद्दत से नहीं बढ़ेगी जितने पहले से। सो इंक्रीज जो होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा एंड 7 पे उससे भी कम इंक्रीज होगा। और जब अगर सपोज करो इसी कमरे के अंदर आप 20 लोगों को हायर कर लेते हो तो इमेजिन करो कि सिचुएशन ऑफ कंजेशन, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बजाय एक्चुअली डिक्रीज करेगी। अब ये जो मैंने सारी स्टोरी आपको बताई है, अगर मैं इस स्टोरी को थोड़ा ग्राफिकल पैटर्न
पैटर्न शो करूं इसका, तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे लेबर ले रही हूँ, यहाँ पर मैं आउटपुट ले रही हूँ और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि नो लेबर नो आउटपुट, फिर 1 लेबर, फिर 2 लेबर, फिर 3 लेबर, फिर 4 लेबर, फिर 5 लेबर, 6, और मैं 5 तक कह रही हूँ कि प्रोडक्शन बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है। सपोज करो कि पहले लेबर से प्रोडक्शन आई इतनी, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। दूसरे लेबर से जो मेरी प्रोडक्शन आ रही है वो इससे डबल नहीं हो रही, उससे ज्यादा हो रही है, तो कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। तीसरे लेबर से प्रोडक्शन उससे भी ज्यादा हो रही है, तो मेरा जो ग्राफ का शेप है ना वो कुछ ऐसे करके ना, यूं करके, इसे कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव, ऐसे करके बढ़ेगा। और फिर 5वें तक जो है ना वो सिचुएशन आएगी कि मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट्स है ना वो आ चुके होंगे, यानी कि प्रोडक्शन जो है ना वो ऐसे करके जाएगी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ इसके बाद से जो प्रोडक्शन है ना वो बेसिकली इंक्रीज तो कर रही है लेकिन उसकी पेस स्लो हो चुकी है, और जब मैक्सिमम पे चली जाती है तो फिर प्रोडक्शन डिक्रीज करती है। मतलब 5 के बाद छठा लेबर आपने लगाया तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बजाय कम होगी, यानी कि छठा लेबर जो है उसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है इनफैक्ट, तभी ये डाउनफॉल में आ रही है। अगर छठे का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होता तो बेशक छोटा ही होता तो वो इंक्रीजिंग होती। फंक्शन उस वक्त तक, मतलब एक फंक्शन की इंक्रीज होती ऐसे, ये नजर आ रही है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। एक होती है इंक्रीज ऐसे, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, और एक होती है ये, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग। ये कैसे होती है? इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, और ये होती है इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, और इसको कहते हैं डिक्रीजिंग। ये उस वक्त होती है जब इंक्रीमेंट जो आ रहा है वो नेगेटिव है। इंक्रीमेंट समझिए, मैं टोटल नहीं कह रही, मैं इंक्रीमेंट कह रही हूँ। यहाँ पर भी यहाँ पर इंक्रीमेंट पॉजिटिव है और यहाँ पे भी इंक्रीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव, एवरी नेक्स्ट इंक्रीमेंट इज पॉजिटिव एंड बिगर देन बिफोर। इसमें एवरी नेक्स्ट इंक्रीमेंट इज पॉजिटिव बट लेसर देन बिफोर। और ये क्यों होता है? ये हमेशा उस जगह पर होगा जहां पर कैपिटल फिक्स होगा। अब यहाँ पर क्या चीज फिक्स है? कैपिटल साइज, विच इज क्लासरूम। अगर हम क्लासरूम को डबल कर दे या रूम को डबल कर दे तो कैपिटल सेल वेरी करेगा, तो ये वाला जो पैटर्न है ये थोड़ा सा लॉन्गर पोर्शन में चला जाएगा। यानी कि आप यूं समझ लो कि ये कुछ इस तरह की चीज हो जाएगी ऐसे। यानी अगर जितना मर्जी कैपिटल बड़ा कर लो, अल्टीमेटली वो इंक्रीजिंग के बाद मैक्सिमम पे आएगा और डिक्रीजिंग पे आएगा, क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी है। जो इंक्रीमेंट आपने डाला है कैपिटल साइज में उसकी भी एक कैपेसिटी है, लेकिन ये तो है शॉर्ट रन। इसके अंदर तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल है ही फिक्स, तो हम सपोज करेंगे हम इसी रूम के साथ जा रहे हैं, तो अगर इसी रूम के साथ जा रहे हैं तो बेसिकली इस किस्म का कुछ पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, अब इस डेटा को जो है सही तरह समझने के लिए इस डायग्राम को मैं वहां से आपकी बुक से, ये है वो ग्राफ जो मैं बात कर रही थी, और इसका डेटा कहाँ पे? ये है डेटा। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट। ठीक है, अब ये नजर आ रहा है, तो इसको हम करते हैं ऐसे। यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी इस वाले को, और फिर उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। ठीक है, सो वी हैव लेबर, ये हमारे पास है टेबल 16.1 जो मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, और मेरे पास है यहाँ पे लेबर, और लेबर है मेरे पास 0 1 2 3 4, ये मैं बाद में लिख लूंगी, और कैपिटल है मेरे पास, और वो 10 के पर फिक्स है। ठीक है, और ये 12 तक यहाँ तक जा रहा है, और ये मैं दोबारा फिल करती हूँ। टोटल आउटपुट, ये टोटल आउटपुट जो है ना उसको हम क्यू लिख लेते हैं, क्यू। ठीक है, वो है 0, फिर है 15, फिर है 40, 69, उसके बाद है 96, उसके बाद है 120, और फिर है 138। ठीक है, और फिर नीचे करते हैं इसको, वन 138 के बाद है जी ये 138 के बाद है 147, 152, 153, 150, 143 एंड 133। ठीक है, अब मैं ज़रा उसको छोड़ के मैं इसी टेबल को फॉलो कर रही हूँ, और हम इसमें से लर्न करते हैं कि हमने करना क्या है। तो बेसिकली 0 के साथ 10, फिर ये 1 लेबर 10 कैपिटल 15 आउटपुट, 2 लेबर 10 कैपिटल 40 आउटपुट, 3 लेबर 10 कैपिटल 69 आउटपुट, 4 लेबर 10 कैपिटल 69 आउटपुट, 5 लेबर 10 कैपिटल 120, 120 आउटपुट, 6 labor 10 capital and 138 out, 7 capital labor 10 capital
इसको एक मिनट में 7 10 capital and 147, 8 labor 10 capital and 152, 9 labor 10 capital and 153, 10 labor 10 capital and 150, 11 labor 10 capital and 143, 12 लेबर 10 कैपिटल एंड 133। अब ये 10 कैपिटल फिक्स क्यों है? क्योंकि ये शॉर्ट रन है, ठीक है। अब आप जरा इसको चेक करें कि जब हम मूव कर रहे हैं जीरो लेबर के साथ तो देयर इज नो प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ यू हैव लेबर एंड कैपिटल बोथ। तो ये बिल्कुल ऐसी कि एक फैक्ट्री बना दी और उस पर काम नहीं शुरू किया तो प्रोडक्शन नहीं होगी। फिर एक लेबर हायर किया, उसने 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल के साथ 15 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दी, ठीक है जी। तो इंक्रीमेंट एक लेबर ने कितना किया, अगर आप देखो तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 15 यूनिट उसने ऐड किए। उसके बाद एक के बाद दूसरा लेबर यानी एक और एडिशनल लेबर लिया और कैपिटल वही रखा, और 15 से हमारी प्रोडक्शन होगी 15 से 40, यानी कितना डिफरेंस आया, ये तकरीबन 25 यूनिट्स का डिफरेंस है। उसके बाद 2 से 3 पर 10 कैपिटल के साथ यहाँ पर भी देखो 40 से 69। सो प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ तक देखिए ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो 120 से 138 कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, 18 यूनिट बढ़े में। यहाँ पर कितना डिफरेंस नजर आ रहा है 138 एंड 147, तो ये तकरीबन 7 + 2 9 का डिफरेंस है, यानी 9 प्लस यूनिट्स है। ये +9 है, +9, ये +18 है। और फिर 147 से 152 कितना बढ़ा हुआ है, सिर्फ +5 हुआ है। और फिर 150 ये +1 हुआ है सिर्फ, यानी बेसिकली जब फर्म ने 8वें से नवा लेबर हायर किया तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आया वो सिर्फ 1 यूनिट का आया। और फिर 9 के बाद जब 10th यूनिट लेबर हायर किया तो 153 से प्रोडक्शन 150 हो गई। तो बेसिकली नेक्स्ट पर्सन ने इंक्रीज नहीं किया बल्कि उसने रिडक्शन किया 3 यूनिट्स का। इससे नेक्स्ट ने मजीद 7 यूनिट्स का रिडक्शन किया और इसके बाद -10। सो व्हाट इज happening, the only thing which is happening is as I keep on increasing labor over fixed capital, production will increase initially at increasing rate। यानी कि इसका मतलब क्या है इंक्रीजिंग रेट? अब मैंने डाटा से बता दिया आपको कि एवरी नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जैसे 15 से 25 इससे बड़ा और ये बड़ा नंबर होगा, इज इवन बिगर देन बिफोर। फिर दोबारा से प्रोडक्शन इंक्रीज करती है बट एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि अभी भी इंक्रीमेंट आ रहे हैं लेकिन जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ रहा है वो पहले से कम है। जैसे ये देखो ये 18 यूनिट का इंक्रीमेंट था और उसके बाद जो इंक्रीमेंट 9 यूनिट का आया, अभी भी पॉजिटिव है, प्रोडक्शन टोटल बढ़ रही है 138 से 147, लेकिन जो उसमें इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। और फिर एक पॉइंट आएगा कि इंक्रीमेंट आने की बजाय एक्चुअली रिडक्शन आ जाएगी। तो तीसरी स्टेज क्या होगी कि प्रोडक्शन एक्चुअली डिक्रीजेस, ठीक है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, मैं यहाँ पर इस वक्त इतना अच्छा ग्राफ नहीं बना सकती, लेकिन अगर आप स्केलिंग के साथ कॉपी पे ग्राफ बनाओगे तो यू विल सी अ वेरी रियलिस्टिक थिंग, जो कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक रफ सा ग्राफ बना के दिखाऊंगी। ये देखो ये आपका जो है लेबर है, फिक्स कैपिटल है, तो यहाँ पे आउटपुट है। तो कुछ ऐसे हो रहा है 0 पे 0 प्रोडक्शन, 1 पे बढ़ाते 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 ये इंक्रीमेंटल है। तो यहाँ पर देखो 5वें लेबर तक जो है ना तकरीबन, उसके बाद 5वें के बाद छठे के बाद ये हो रहा है इंक्रीजिंग विद। ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ जो है ना अच्छा नहीं बनाया, इसको जरा हम करते हैं 1 मिनट, मैं इसका ग्राफ जरा बेहतर करती हूँ। ये देखो ये जो है ना ये है इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग रेट का मतलब है ये कॉन्वेक्स कॉनकेव टाइप का ग्राफ आएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट का मतलब है इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन हल्की फेज हो रही है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, और मैक्सिमम जब भी आ जाता है उसके बाद डाउनफॉल होती है। ये वो पोर्शन है जिसके ऊपर एडिशनल यूनिट्स जो है वो नेगेटिव है, ये वाला फेज तीसरी स्टेज है। तो ये जो है ना जहां तक प्रोडक्शन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट होती है, इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं इसको, और जहाँ पे इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट इसको आइसोलेट करते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, और इसको हम कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैंने जो अभी सिखाया उसमें क्या बताया है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या होती है, और प्रोडक्शन का बिहेवियर क्या होता है, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होती हैं। तो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ एक और चीज जो आपने साथ में देखी कि मैंने हर दफा ये भी बताया कि एक से दूसरे यूनिट लेबर ऐड करने में जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट कितना आया है।
तो जो चेंज इन प्रोडक्शन आती है, मतलब ये अब क्या चीज आपने बेसिकली निकाली है, ये आपने चेंज इन प्रोडक्शन निकाली है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, कि एज यू कीप ऑन चेंजिंग लेबर हाउ मच प्रोडक्शन इज चेंजिंग। ये पूरा एक कॉलम बनेगा, इसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। और किस चीज को चेंज कर रहे हैं? एल को। तो एमपीएल कहते हैं इसे। तो व्हाट इज एमपीएल? एमपीएल इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट with increase in labor by 1 unit। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं 1 यूनिट लेबर इंक्रीज कर रही हूँ, तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है। अगर मैं उस चीज की रेशो ले लूँ तो मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक और चीज होती है, उसे हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और वो किसके बराबर होती है? टोटल प्रोडक्ट जो भी होती है ना आपकी, उसको आप नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दो। तो ये देखो 0/0 अनडिफाइंड है, पहला वाला नंबर इसका अनडिफाइंड होता है। उसके बाद 15/1 इज 15, फिर 40/2 इज 20, फिर 69/3 इज 13, फिर 96/4 एंड सो ऑन। तो ये कॉलम्स आपने खुद कैलकुलेट करने होंगे। तो आप देखो कि आज की क्लास के अंदर जो हमने देखा, तो वो मैंने आपको यहाँ से जो आपको ये दिखाया है, ये वाला, ये जो आपका टेबल है ना, इसमें देखो अमाउंट ऑफ लेबर, ठीक है जी। और ये इधर हो जाता तो बेहतर था। पैरल अमाउंट ऑफ लेबर 0 से लेके 12, अमाउंट ऑफ कैपिटल 10, टोटल प्रोडक्शन को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है, वही सारे नंबर है। एवरेज प्रोडक्ट को क्यू बाय एल कहा हुआ है, वो आप निकाल सकते हो। यू हैव द डेटा, सो एंड दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड यू आल्सो हैव दिस डेटा। ठीक है जी, तो ये सारा डेटा आपके पास है, आप इसका टेबल कंप्लीट करेंगे, ये आपका काम है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और फिर मैंने जो चीज आपको बताई है कि ये जो ग्राफ इसका बनाया हुआ है, और इस ग्राफ में बी तक जो है प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है, एंड वी वुड कॉल इट, या यहाँ तक है, ए पॉइंट तक इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है, इस पॉइंट तक हम इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज। ए से लेके सी तक है इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, इसे हम कहते हैं सेकंड स्टेज। और उसके बाद ये जो डाउनवर्ड फॉल पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं थर्ड स्टेज। ठीक है जी, और ये ग्राफ जो है इसके साथ लिंक करते हैं। तो मैं आपको ये वाले ग्राफ भी सिखाती हूँ कि इसको हम कैसे निकालते हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो ये डेटा दिया हुआ है ऊपर, ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया है, हम क्या करेंगे, एक ही ग्राफ के अंदर लेबर को एक्स एक्सिस पे रखेंगे और क्यू को वाई एक्सिस पे रखेंगे। पहले हम ये ग्राफ बनाएंगे, फिर हम उसी के अंदर ये एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे, और उसी के अंदर हम मार्जिनल प्रोडक्ट का भी बना सकते हैं। और उसके बाद, या फिर ऐसे ही बना ले जैसे कि बुक में है, कि ऊपर आप ये बना लो लेबर, और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ, और नीचे एवरेज और मार्जिनल को बना लो। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की शेप आएगी। अब इसके अंदर भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और वो स्टोरीज जो है ना, मैं आपको अभी 10 मिनट में इससे कंप्लीट कर देती हूँ, फिर हम उसको फर्दर जो है ना बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो कम बैक टू द स्टोरी, कि क्या इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर स्टोरी क्या है। तो मैं अब वो नंबर से ग्राफ तो नहीं बना सकती इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको वो स्टोरी जरूर इसमें से बता सकती हूँ कि इसमें एक्चुअली चल क्या रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं उसी ग्राफ को कॉपी कर रही हूँ यहाँ पर। I wish I can do in a better way. अच्छे सी को ले लेते हैं। ओके, ये हमारे पास ग्राफ एक बन गया। ठीक है जी, और इसको मैं असल में इसके साथ कनेक्टेड वाला ग्राफ बनाना चाह रही हूँ। मैं नीचे इसको बना लेती हूँ। आई होप कि मैं सही बनाऊँ, या और यहाँ पे जो है इसको मैं ऐसे करके आई विल मेक इट दिस, और बाकी मुझसे कर्व्स यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे, तो मैं अब इसी के ऊपर करूँगी। ठीक है जी, अब ये देखो, ये मेरा लेबर एक्सेस है और ये मेरा आउटपुट एक्सेस है, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट फंक्शन बन रहा है। यहाँ पे वही लेबर एक्सेस है, क्योंकि देखो एवरेज प्रोडक्ट भी लेबर का फंक्शन होती है, और मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर है और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। ठीक है जी, ये ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ये एरो यहाँ पे गलत है, इस तरह नहीं बनना चाहिए था। ये स्टेज मैक्सिमम, ओ वाह अच्छा बन गया टोटल प्रोडक्ट। ठीक है जी, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ऐसे होना चाहिए। वेट, आई नीड इरेजर, या थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेती हूँ, या ओके।
इट्स बेटर नाउ। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये वो पॉइंट है जिसमें टोटल प्रोडक्ट जो है वो है मैक्सिमम। ठीक है जी। और इसमें ये जो पॉइंट है ना, यहाँ तक ये जो स्टीपनेस है ना, इससे ये पॉइंट ए है। ठीक है जी। और यहाँ तक जो है ना टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है लेकिन इस कॉल्ड डिक्रीजिंग रेट। और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली डिक्रीज करती है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज, इसको हम कहते हैं सेकंड स्टेज, और इसको हम कहते हैं थर्ड स्टेज। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना 3 पॉइंट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पॉइंट तो ये जो मैंने बनाया हुआ है जहाँ पर इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट शुरू होता है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन वो बनते कैसे हैं वो आप, उसके लिए मैं लाल सी लाइन ले लेती हूँ यहाँ से, रेड कलर की लाइन से हम इसको बनाते हैं ताकि वो डिस्टिंग्विश कर सकूँ मैं। एक लाइन मैंने बनानी है जो ओरिजिन से निकलेगी। ठीक है जी। और वो उस ग्राफ को टच करके ऊपर जाएगी, टेंजेंट बना के जाएगी। जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनती है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ऐसे लेती हूँ, या आई वुड टेक इट लाइक दिस। इसको नीचे तक लेके आना होता है इनफैक्ट, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये जो है ना ये वाला इसको मिटा देते हैं, ये भी गंदी सी लाइन है, और इसकी जगह हम ना वो वाला बनाते हैं अपना, अंडू कर दो एक मिनट, ये भी मिट गया इसने, बस अब ठीक है। या इसके लिए लाल लाइन देके, और लेट मी एक्चुअली टेक दिस लाइन एंड टेक इट डाउन। ओहो, अंडू, शिट, ये क्या हुआ? मेरे ग्राफ तो है यस, ठीक है ना। इसका जरा मैं एक मिनट, यहाँ से लेना है रेड लाइन और यहाँ से लेनी है स्ट्रेट लाइन, और अब मैंने बनाना है ये ग्राफ, ये यस। ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट जो है ना मेरा इम्पोर्टेंट वो है अगेन ये वाला जहाँ पे इसकी मैक्सिमम आ रही है। ये हो गई बात। ठीक है। अच्छा, जो इसका बनेगा ना, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट होगी 0। ठीक है। ये पॉइंट है सी पॉइंट, इस पे होगी मार्जिनल प्रोडक्ट 0। और यहाँ पर जो है ना मार्जिनल प्रोडक्ट होगी मैक्सिमम। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है ना बेसिकली यूं होगा, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट ए पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट होगी मैक्सिमम। ठीक है, ये ए पॉइंट है। और ये सी पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट होगी 0। अगर कोई चीज मैक्सिमम हो तो उससे पहले वो इंक्रीज हो रही होती है, और जब 0 होती है तो उसके बाद वो डिक्रीज होगी, और उसके बाद जब टोटल प्रोडक्ट नीचे जाएगी ना तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये जो है मेरा बन गया मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व। ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट जो है ना, एवरेज और मार्जिनल इस पॉइंट पे बराबर होती है, ये वाली पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट जहां पर ये टेंजेंसी है ना, जो मैंने कहा था बी पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वो पॉइंट है। ठीक है जी। और यहाँ पर एवरेज, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर एवरेज और मार्जिनल बराबर होती हैं और एवरेज मैक्सिमम होती है। तो अगर यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है तो इससे पहले वो इंक्रीजिंग होगी और इसके बाद वो डिक्रीजिंग होगी। तो ये एक बड़ी मिस्टीरियस सी जो है ना कनेक्शंस है। अब मैं आपको इसको लिखवा देती हूँ ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रहे। 3 स्टेजेस। स्टेज 1, total product increases with increasing rate. Stage 2, total product increases with decreasing rate. Stage 3, total product actually decreasing. खत्म। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये देखिए, ये आपके पास दोनों ग्राफ बने हुए हैं। पहला रिलेशन, बोथ increases go to maximum and decreases, right? Number 2, when average product is increasing, marginal product is also increasing, and marginal product is greater than average product. ये देखो, जब क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, ये एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रही है।
और थ्रू आउट द रेंज यहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट जो कि ये वाली है एवरेज के ऊपर है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें तो दूसरी बात क्या समझ में आ रही है कि जब यहां से देखें एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, ये वाला एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज कर रही है। जब दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व थ्रू आउट एवरेज से नीचे है। सो व्हेन एवरेज प्रोडक्ट is decreasing implies marginal product is also decreasing and marginal product is entirely less than average product. तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, देखो हमने इंक्रीजिंग ऑफ मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट को डिस्कस करके मार्जिनल के साथ लिंक किया, डिक्रीजिंग ऑफ एवरेज को डिस्कस करके मार्जिनल के साथ डिस्कस किया, अब एक ही चीज रह गई है और वो ये पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट के व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट। ये देखो ये दोनों बराबर है, ठीक हो गया। तो ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आपने याद रखना है। अच्छा दूसरी चीज देखें, अगर आप स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को हम यहाँ से लिंक करें एक और चीज, ये देखो ये पहला स्टेज है ना, तो पहला स्टेज जो टोटल के अंदर जो है वो यहाँ पर देखो ये है, ये भी पहला स्टेज ही है, ठीक है। और ये दूसरा स्टेज है ना, उसके साथ कौन सा वाला कंपैटिबल पोर्शन है, ये दूसरा स्टेज है, ठीक है जी। और तीसरा स्टेज जो है वो जो इसके बाद था ये वाला, ये सारा दूसरा स्टेज है। एक मिनट, ये सारी ये भी सारी जितना जहां तक एवरेज और मार्जिनल जो है ना ये ऊपर रहती है ना एक्स एक्सिस के, वो सेकंड स्टेज ही चल रही होती है। एवरेज तो कभी नीचे जाती ही नहीं है, लेकिन मार्जिनल जो है वो नेगेटिव हो जाती है। जहां मार्जिनल नेगेटिव होती है ना वो तीसरी स्टेज है। तो हम कह सकते हैं अगर मैं देखूं कि पहली स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजिंग है, दूसरी स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजिंग है, और तीसरी स्टेज में जो एवरेज प्रोडक्ट है ना वो ज्यादा एक्स एक्सिस के क्लोजर हो जाती है। मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पहली स्टेज में भी इंक्रीजिंग है, सेकंड में पार्शली डिक्रीजिंग है, लेकिन वो एवरेज से ऊपर है, और सेकंड स्टेज के अंदर वो एवरेज से नीचे चली गई, और थर्ड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गई। तो अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करूं तो फर्स्ट में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, सेकंड में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, और थर्ड में लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। ये तीन बातें, तो ये हमने तीन स्टेजेस कर ली। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है, पहली स्टेज कौन सी सिचुएशन होती है, ये वो स्टेशन होती है जब आप हर नेक्स्ट लेबर के इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीमेंट ज्यादा बढ़ा रहे, यानी कि द इंक्रीमेंट इन द टोटल प्रोडक्ट विच इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर इज मोर देन एवरी टाइम, यानी कि ये वो टाइम है जब आपका हर नया लेबर जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है और पहले से ज्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। सेकंड स्टेज वो है जहां पर आप थके हुए लेबर हायर कर रहे हो, क्योंकि मार्केट से एफिशिएंट लेबर जो है वो आप ऑलरेडी हायर कर चुके हो, नाउ यू वर्किंग विद द इनएफिशिएंट लेबर एंड द एडिशनल लेबर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एज मच टू द प्रोडक्शन एज द प्रीवियस लेबर्स वर डूइंग। और फिर उसके बाद जब थर्ड स्टेज आती है, सो एक्चुअली यू आर वर्किंग विद वेरी इनएफिशिएंट लेबर हु आर नॉट वर्किंग बट also affecting the production made by other laborers, and you are already facing the problem of congestion because you are bound by the fixity of capital, और इसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये तीन स्टेजेस की स्टोरी है जिसकी वजह से ये सर्टेन बिहेवियर्स हैं जो प्रोडक्शन फॉलो करती है। अब इस लेक्चर को मैं इस पॉइंट पे जाके खत्म करूंगी कि ओके मुझे जो जितनी भी चीजें इसमें से समझ में आई है और नजर आई हैं वो ये नजर आई हैं कि सारा प्रॉब्लम फिक्सिटी ऑफ कैपिटल की वजह से आ रहा है, यानी कि एक फैक्ट्री का साइज छोटा है तो अब प्रोडक्शन विजिबल नहीं रह गई, तंगी हो रही है तो बड़ी, तो इसका मतलब है सोल्यूशन तो एक बड़ा आसान सिंपल सा है ना कि आप साइज को बड़ा कर लो। साइज को बड़ा करने का मतलब है कैपिटल साइज इनलार्ज कर दो। कैपिटल साइज इनलार्ज करने का मतलब है कि अब कैपिटल वेरिएबल हो गया, अगर वेरिएबल हो गया तो हम शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर वी आर मूविंग फ्रॉम द शॉर्ट रन टू द लॉन्ग रन, these kind of problems should not arise. So the thing is that we really have to see कि क्या लॉन्ग रन के अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो एवर इंक्रीजिंग होता है, यानी वो कभी डिक्रीज ही नहीं करता, या वो भी इसी तरीके से इंक्रीजिंग मैक्सिमम डिक्रीजिंग पे आता है, और अगर ऐसे आता है तो उसकी रीजन क्या हो सकती है। दिस इज द क्वेश्चन वी रियली वांटेड टू आंसर, बट डेफिनेटली इट्स बीइंग 45 मिनट्स, तो ये अपलोड करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल बी गोइंग थ्रू दैट। Thank you so much.